Well, here is the correction for the test that we had taken today. I want everyone to please see to it that you do the correction. Correction is more important than the actual test. Please remember that. I want every student to please do the correction sincerely 3 times, and if at all you don't know the answer, and if you have just taken down just randomly any of the test, please see to it that you know the solution of it. Okay, the first 5 questions rather were easy questions. Okay, so they were just very simple question. I wanted everyone to score nicely, and so that was the reason I gave you those first 5 questions, right? The first question was this. The first question was the principal value. Okay, you know the value of sine inverse always has to lie between minus pi by 2 to plus pi by 2. Okay, so the value when the angle when it takes sine of 1 by root 2, okay, the angle is 45 degree, and so your first answer is pi by 4, that is A, right? Yes. Yeah, your next question was here. This is the second question. The principal value of cos inverse. Now you remember the value of cos inverse of minus x. The answer was pi minus cos inverse x. Remember, है ना, तुमसे बोला गया था कि cos और sec जब भी इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू होता है तो वो वैल्यू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, सो हियर ऑल्सो मुझे इसका आंसर चाहिए, सो इट वुड बी पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट 2, और ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस 1 बाय रूट 2 लेता है 45 डिग्री, सो योर आंसर इज 3 पाई बाय 4, and so the option here is B. Okay, next you have the third question. The third question was this. Okay, if sine inverse x is equal to y, then what is the value of y? ठीक है, तो it is actually asking you the range of this the function y is equal to sine inverse x. ठीक है, so the range of this function is माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 closed interval, है ना? So option is B. I know the answer that they had given was wrong. They had written D, है ना? But the correct option is B, and I have increased the marks of all the students who had written option B, but 1 mark was deducted, है ना? तो इसका मैंने अपने रिकॉर्ड्स में 1 मार्क बढ़ा दिया हूँ। ठीक है ना? नेक्स्ट यू हैव द वैल्यू निकालना है अपन को। The fourth question. ठीक है, here is the fourth question. tan इनवर्स रूट 3 sec इनवर्स माइनस 2, इसका वैल्यू चाहिए मुझे। तो इसका वैल्यू होगा tan रूट 3 लेता है 60 डिग्री पे, यानी पाई बाई 3 पे, और मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया था सेक नेगेटिव को छोड़ता है पाई माइनस करके, तो पाई माइनस सेक इनवर्स 2, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस पाई, और ये पॉजिटिव, और सेक 2 लेता है 60 डिग्री पे, है ना? सेक 2 लेता है 60 डिग्री पे, तो 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3, सो दिस इज 2 पाई बाई 3 माइनस पाई,
तो इसीलिए इसका आंसर -π/3, तो इसका ऑप्शन था बी वाला। ठीक है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 5। Here is question number 5. Yes. Question is y is equal to sec इनवर्स x देन y का वैल्यू। ओके, तुमसे मैंने एक तरीके से इसका भी रेंज निकालने वाला क्वेश्चन है क्या, और तुमसे मैंने बोला था कि cos sec cot इसका रेंज फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, तो -0 से लेके पाई तक होगा, लेकिन sec 90 नॉट डिफाइंड होगा, है ना। तो इसका आंसर जो है ऑल दीज वैल्यू 0 से पाई, लेकिन π/2 छोड़ देना। तो ये है बी वाला ऑप्शन, इसका सही रहेगा, 0 से π/2 और फिर π/2 से पाई, देख दोनों में पाई इंक्लूडेड नहीं है, so the option is B. Okay, so this was the 5th question here. ठीक, next you have the 6th question. Yes, here is the 6th question ready for us. और तुम्हें याद हो तो ऐसे वाले क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, ठीक है ना। सिक्स्थ क्वेश्चन इज इफ tan इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू अल्फा, तो x स्क्वायर का वैल्यू क्या है। बेटा x स्क्वायर, सबसे पहली बात तो ये है कि x का वैल्यू इन क्वेश्चन में -1 से +1 के बीच में ही हो सकता है, नहीं तो ये क्वेश्चन ही गलत माना जाएगा, बिकॉज कैन यू सी देयर इज अ 1 - x स्क्वायर टर्म। तो ये क्वेश्चन एग्जिस्ट करना है तो ये पॉसिबल तभी होगा जब -1 से +1 के बीच में होगा, और एट द सेम टाइम x स्क्वायर का वैल्यू फिर उस केस में 0 और 1 के बीच में होगा, है ना। तो मैं कुछ ऐसा वैल्यू डालू जो सब में अच्छे से सेटिस्फाई हो जाए। तो मैंने एक काम किया, x स्क्वायर का वैल्यू मैंने डाला cos ऑफ 2 थीटा, है ना, ताकि मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं लिखूंगा √1 + cos ऑफ 2 थीटा, जिसको मैं लिखूंगा 2 cos स्क्वायर थीटा, और जिसको मैं लिखूंगा √2 cos थीटा। और एट द सेम टाइम 1 - x स्क्वायर को मैं लिखूंगा √1 - cos ऑफ 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर ऑफ थीटा, तो ये हो जाएगा √2 sin थीटा। ठीक है, तो मुझे ये क्वांटिटी गिवन है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इफ आई टेक tan इनवर्स टू द अदर साइड इट विल बिकम 1 + x स्क्वायर, यानी √2 cos थीटा, √2 कॉमन निकलेगा, माइनस sin थीटा अपॉन नीचे से भी √2 cos थीटा और प्लस √2 sin थीटा, और ये बन जाएगा tan अल्फा का वैल्यू। और मैं लेफ्ट हैंड साइड में ऑल द टर्म्स इफ आई डिवाइड बाय cos थीटा, तो ये हो जाएगा 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा, ये बराबर tan अल्फा गिवन है, तो tan ऑफ π/4 माइनस थीटा का फॉर्मूला बनता है ये बराबर अल्फा। तो tan, तो कंपेयरिंग करेंगे, काटते नहीं है, कंपेयरिंग करते हैं, तो अल्फा का वैल्यू π/4 माइनस थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा π/4 माइनस। नाउ इस एक चीज में अगर मुझे थीटा का वैल्यू चाहिए तो cos उस साइड चले जाएगा, cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर विल बिकम 2 थीटा,
और थीटा विल बिकम हाफ cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बिकम हाफ cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इस केस में, ठीक है, मैंने अगर एक हाफ कॉमन निकाला तो मेरे पास रह जाएगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फिर इफ वी कंटिन्यू ऑन, तो 2 विल गो टू द अदर साइड, सो 2 अल्फा का वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू साइन ऑफ 2 अल्फा, ये है आंसर, ठीक है। साइन ऑफ 2 अल्फा यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू साइन ऑफ 2 अल्फा, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट यू हैव द seventh question, okay, and question number 7 is here. There it is, ठीक है। ये है 7th क्वेश्चन। साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ टैन ऑफ कॉस इनवर्स, इसका वैल्यू चाहिए। चलो देखो, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरी इच्छा है कि ये कॉस जो है ये टैन में बदल जाए, तो मैं एक छोटा सा ट्रायंगल बनाया। ये कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये बन गया बेस, ये बन गया हाइपोटेन्यूज, दिस विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ टैन ऑफ, अभी कॉस इनवर्स को मैं टैन इनवर्स में बदलना चाहूंगा, तो टैन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो ये दोनों डूब जाएगा भी। And now I have sine of cot inverse of under root of 1 minus x square upon x. Now I wish to convert this cot inverse to a sine. So again I'll make a triangle. Cot कहता है base upon perpendicular, तो ये बन गया base, ये बन गया perpendicular, तो हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर विल गिव यू सिंपली 1, तो इसको साइन में बदलना है, तो दिस वुड बी साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय 1 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन ऑफ साइन इनवर्स, तो आंसर इज एक्स, सो आंसर इज एक्स, सो ऑप्शन 7 इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। सो दैट वाज इट। देन यू कम टू क्वेश्चन नंबर 8। Yes, the eighth question is a very, very good question, a very special question. I've told you in all my question papers there would be at least one question which is out of the box, and I am very happy many of you students were able to take the right answer to this, may it be a tukka method or whatever, but they have done this. But this question actually, it's something, you know, you'll have to see the choices, चॉइसेस देख के अपन को इसका आंसर पे सेट करना है। चलो इसको एक जरा सॉल्व करके देखते हैं, है ना। तो यू हैव साइन ऑफ 1/4 साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 63/8, है ना। इसका वैल्यू चाहिए, तो मैंने इसका वैल्यू अगर y माना तो साइन गोज टू द अदर साइड, आई हैव 1/4 साइन इनवर्स ऑफ 63/8 is sine inverse y,
ठीक है, यहाँ से एक 2 लिया और वो 2 यहाँ पे दे दिया, तो 2 साइन इनवर्स y का फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2y अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 63/8। यहाँ से 2 ले जाके फिर से यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो यू हैव नाउ साइन इनवर्स ऑफ 63/8 को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला लगा रहे हैं, साइन इनवर्स ऑफ दिस होल थिंग अगर मैंने x मान लिया तो 2x यानी 2 टाइम्स ऑफ 2y अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर अंडर रूट ऑफ 1 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बोले थे तो 1 माइनस इस पूरे चीज का स्क्वायर, तो इस पूरे चीज का स्क्वायर वुड बी 4y स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर, रूट हट गया क्योंकि स्क्वायरिंग किया, ठीक है। दोनों साइड से अगर साइन हटा देंगे, दिस इज रूट ऑफ 63, तो रूट ऑफ 63/8 को मेरे को लिखना पड़ेगा 2 2s 4y अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 4y स्क्वायर और प्लस ऑफ 4y4, ठीक है ना। और मैंने इसको फिर से स्क्वायरिंग किया, तो 63/8 is 64 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर इज 16 वाई स्क्वायर, ठीक है। 16 वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 माइनस 4y स्क्वायर, है ना, 1 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 4y4, ठीक है। और अगर मैंने y स्क्वायर को सपोज x माना तो ये हो जाएगा 63/64 इज इक्वल टू 16x 1 माइनस x और 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है। अभी ये तो फिर से अगर ओपन अप करेंगे तो बेटा 4th डिग्री आ रहा है ना, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो 4th डिग्री। तो इसीलिए मैं बोल रहा था इसके आगे तुम्हें करना है तो इसका चॉइसेस देखना पड़ेगा, है ना। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में अपन लोग डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, इसको हमें ऑब्जेक्टिव के फॉर्म पे लेना है। अगर y बराबर मैंने 1/√2 माना तो x बराबर हो जाएगा 1/2, है ना, 1/√2 का स्क्वायर, और मैंने 1/2 अगर इसमें डालेंगे तो 16 इंटू 1/2, 1 माइनस 1/2 और 1 माइनस 4/2 और 4/4, सही है ना। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2 माइनस 2, अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे 0 हो गया, है ना। 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2, और LHS में 63/64, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो पहला चॉइस को हटा दिया। दूसरा चॉइस में 1/√3 अगर y डालेंगे तो x बराबर 1/3 हो जाएगा, तो RHS में मैं डाल रहा हूँ 1/3, तो ये हो जाएगा 16/3, 1 माइनस 1/3 वुड बी 2/3, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 4/3 और 4/9। तो बेटा डिनोमिनेटर में 8 तो दिख नहीं रहा है कहीं से कहीं तक, है ना। LCMs में कहीं पे भी 8 नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए ये चॉइस को भी मैंने हटा दिया,
ठीक है ना, ये चॉइस को भी हटा दिया। तो फिर सी चॉइस में मैं देख रहा हूँ, सी चॉइस में अगर मैंने एक y को 1/√2√2 डाला तो 2√2 का स्क्वायर 8 होता है। तो x को अगर मैंने 1/8 डाला तो 16 इंटू 1/8, 1 माइनस 1/8 को मैंने लिख लिया 7/8, और 1 माइनस 4/8, और 4/8 का स्क्वायर 64। तो 8 टू ज़ा 16, तो 2 और 7/8 अभी भी पड़ा है, और 4 goes in 16 times, 4 goes in 2 times, और LCM हो गया 16। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 2 8 ज़ा 16 और प्लस 1। तो 16 और 1 17, 17 में से 8 गया तो 9 होगा, 9 होगा। 2 goes in 4 times, 16 4 ज़ा नीचे 64 आ गया, ऊपर 7 आ गया, तो 63/64 जो LHS है। यस, दैट इज सेट। सो ऑप्शन सी इज द आंसर हियर, है ना, ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हुआ। ठीक है, इस क्वेश्चन में बाय एनी मीन्स मेरे को लगता इसको सॉल्व करके एग्जैक्टली एक्स का वैल्यू निकालना मेरे को नहीं मालूम, दैट इज़ अ वेरी टफ टास्क, है ना, और कोई मेथड मेरे को इसमें मेरे को मिल नहीं रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। इफ tan इनवर्स ऑफ cot थीटा अगर 2 थीटा है तो थीटा का वैल्यू चाहिए। तो tan इनवर्स उस साइड चले जाएगा तो cot थीटा का वैल्यू हो जाएगा tan ऑफ 2 थीटा। ठीक है, और tan ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। cot थीटा होता है 1/tan थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 tan स्क्वायर थीटा। तो 3 tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1, तो tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/√3 का प्लस माइनस। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, नाउ इफ इट इज अ प्लस तो क्लियरली थीटा का वैल्यू tan 1/√3 30 डिग्री में लेता है, यानी π/6। ठीक है, और अगर माइनस है तो माइनस में माइनस π/6 लेगा। थीटा का वैल्यू नेगेटिव, थीटा का वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल है। यस, इट इज़ पॉसिबल। एक बार नेगेटिविटी जरा चेक करो यार। तो नेगेटिविटी चेक करेंगे तो 2 इंटू π/6 यू हैव व्हाट इज इट ऑन द राइट हैंड साइड, 2 इंटू दिस इज π/3। और यहाँ पे tan इनवर्स चेक ज़रूर करना बेटा, tan इनवर्स कॉट ऑफ माइनस π/6 वो नेगेटिव छोड़ेगा, वो भी नेगेटिव आ जाएगा। यस, आई थिंक बोथ आर पॉसिबल, सो आई फील ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में 4 cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x का वैल्यू पाई है, तो x का वैल्यू निकालना है। तो मैंने एक काम किया, यहाँ से एक cos इनवर्स निकाल लिया और एक cos इनवर्स इसके साथ दे दें, तो cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज π/2। ये π/2 उस साइड चले आएगा तो पाई में से π/2, तो दिस इज π/2 इज 3 cos इनवर्स x। तो cos इनवर्स x का वैल्यू π/6, तो x का वैल्यू cos ऑफ 30 डिग्री
cos of 30 degree is root 3 by 2. So option C is the correct answer.